Now we are learning about retrieving data using queries. So in the previous chapter we have mentioned that database is huge collection of data. Now think of situation where we want to retrieve information from a database. Now suppose we want to send information about Independence Day offer to our customer. We would need list of our customer along with their address. Assuming that this information is stored in a table named customer, the detail can be obtained by opening this table. Query is the feature of base which can be used to retrieve specific set of information from database. So the user can retrieve data according to his choice, criteria and format irrespective of how it is stored in the database. We can ask a question like give me detail of customer who has purchased product worth more than 1 lakh rupees in the current year, or give me details of product that have not been sold even once. So one of the key reasons to use database management system is its ability to design, save and use the query as and when required. So students, हमारे पास टेबल है, हमारे पास टेबल में बहुत सारे फील्ड है और उस फील्ड में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट किए हुए हैं. हम देख सकते हैं इन ओपन ऑफिस. यू कैन डाउनलोड इन ओपन ऑफिस फ्रॉम openoffice.org. सिलेक्ट डेटाबेस. हमारे पास डेटाबेस है. So open an existing database, and if you want to create a new database then use create a new database. हमारे पास database already है. So student नाम का ये database है. finish बटन पे हम क्लिक करेंगे. So हमारे पास ये जो student नाम का database है वो हमारे स्क्रीन पे ओपन होगा. टेबल पर हम क्लिक करेंगे. हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने बहुत सारे टेबल क्रिएट किए हुए थे. सपोज सिटी, कंट्री, कस्टमर, एग्जाम्पल, स्टेट, राइट. हमने ये सभी टेबल क्रिएट किए हुए थे. स्टूडेंट मास्टर भी उनमें से एक था. हमने लास्ट टाइम रिलेशनशिप हमने देखी और फर्स्ट इंटरनल और स्टूडेंट मास्टर के बीच हमने रिलेशनशिप भी क्रिएट किए हुए थे. और हमने कंट्री, सिटी और स्टेट टेबल के बीच में भी हमने रिलेशनशिप क्रिएट की थी. अब हमारे पास जो टेबल है, यानी कि सपोज मान लो हमारे पास स्टूडेंट मास्टर टेबल है, हम उसको ओपन करेंगे. हमने ऑलरेडी उसमें डेटा एंट्री की हुई है. सो हम उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमें हमारे पास 25 रिकॉर्ड्स है. और इस रिकॉर्ड में से हमें अगर कुछ ही फील्ड इस टेबल में से हमें कुछ ही फील्ड हमें शो करना है या कुछ ही फील्ड हमें रिट्राइव करना है और कुछ ही रिकॉर्ड्स इनमें से हमें रिट्राइव करना है, तो हमें यूज करना होगा क्वेरीज का. सो स्टूडेंट्स, सो क्वेरी, हाउ टू डिफाइन अ क्वेरी. सो क्वेरी बेसिकली मीन्स आस्किंग अ क्वेश्चन, doing query or performing analysis. In base to query is to ask a question about the information in database. So through a query one can tell base to display exactly which field and records a person would like to view from the database. It is a set of rules for fetching information from a table or from several table at once. The result of a query is itself in the form of table. So it consists of a set of records organized in rows and columns. So to create a query, open a database and click on the icon labeled as queries in the left hand pane. The queries windows is organized like the other windows in base. So different ways to create a query will be shown in the task pane display at the top. If you have already created some queries, then it will be listed under the pane title queries. So figure shows the windows there when queries icon is select. See here. So हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं. यहाँ पे
हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टेबल है। टेबल ऑब्जेक्ट में अगर हम क्वेरीज पे क्लिक करेंगे तो उसके राइट पैन में हमें टास्क पैन में हमें दिखाई देगा देर आर 3 ऑप्शन: क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, एंड थर्ड वन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। अगर हम यहाँ पे कोई क्वेरीज डिफाइन करते हैं तो वो भी टेबल की तरह यहाँ पे क्वेरीज के जो पैन है उसमें हमें दिखाई देगी। सो हम पहले क्वेरी डिफाइन करने की शुरुआत करेंगे। सो as you can see in figure, under the task pane, Base offer 3 different ways to create a query. If you are database expert, you might prefer design or SQL view. However, Base Query Wizard has the advantage of helping us organize our thoughts while requiring no previous knowledge. अगर हमें queries का कोई knowledge नहीं है तो हम queries को wizard के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। So let us discuss each of this option one by one. So पहले हम क्वेरी को डिजाइन करेंगे by using wizard. So wizard is a ready-made task कि जहाँ पर हमें one by one इंफॉर्मेशन हमें जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें देनी है। सो हम यहाँ से प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। सो हमारे पास टेबल है, क्वेरीज मीन्स टू आस्क क्वेश्चन। मान लो हमारे पास स्टूडेंट मास्टर का ये टेबल है, क्लिक करके उस टेबल को हमने ओपन किया हुआ है। अगर हमारे पास कोई क्वेरी है, मीन्स अगर हमको अथॉरिटी ये कहती है कि आपको सिर्फ हमें इसमें से नेम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर ही चाहिए, पूरे टेबल में से हमारे पास सिर्फ रिक्वायरमेंट है नेम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर की, तो हमें क्वेरी क्रिएट करनी होगी। सो हम क्वेरी क्रिएट करेंगे, रिमेंबर बाय यूजिंग विजार्ड। सो फर्स्ट सिलेक्ट क्वेरी, एंड हम विजार्ड का यूज करेंगे। So select use wizard to create query. When I click on use wizard to create query, then it will open a dialog box with 8 steps. Remember, a query wizard has 8 main steps. पहला स्टेप्स है फील्ड सिलेक्शन का। सो पहले स्टेप्स में से हमें किस टेबल क्वेरी क्रिएट करनी है, किस टेबल को यूज करके। सो हमने डिसाइड किया हुआ है कि स्टूडेंट मास्टर का यूज करके हमें क्वेरी डिफाइन करनी है। सो सिलेक्ट और चूज स्टूडेंट मास्टर। व्हेन यू चूज स्टूडेंट मास्टर फ्रॉम टेबल लिस्ट, देन इट विल शोज द अवेलेबल फील्ड फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर। यू कैन सी हियर, हमें अब हमारे सिलेक्टेड फील्ड, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें ये फील्ड को हमें सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट सपोज नेम सिलेक्ट हियर। when you select single greater than यानी कि selection button, then it will now fields in the query, then select choose city and click on it, then it will shows once again in queries field। और contact number भी हमें चाहिए। so उसको select करके हम फिर से ये सिंगल select field पे हमें क्लिक करेंगे। हमारे पास अब फील्ड में तीन सिलेक्ट किए हुए फील्ड है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन इट विल मूव ऑन आवर सेकंड स्टेप, दैट इज सॉर्टिंग ऑर्डर। अब हमें कोई फील्ड के ऊपर हमें कोई सॉर्टिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज हमें सिटी फील्ड पर हमें सॉर्ट करना है तो सिटी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक हम अगर करेंगे तो यहाँ पे सर्च कंडीशन यहाँ पे बताएगा जो सिलेक्ट द सर्च कंडीशन है। सो वी हैव अ 2 ऑप्शन फॉर सर्च कंडीशन। वन ऑफ देम मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एंड सेकेंड that is match any of the following. See, for match all of the following and match any of the following. So match of all of the following and match any of the following. So since we have only one condition,
we would not need to change the default setting if multiple search conditions are to be set. Remember, if multiple search conditions are to be set, like if we are looking for customer with last name as Shah or Patel, then we need to choose match any of the following. Remember it. Once the search condition are finalized, click on the next button and figure shows here. See, match all of the following and select it. So at this point, base keeps 3 steps on its standard wizard and jumps to the 7th step. In our case, the selected customer table does not contain any numeric field and so step including option to summarize or perform numerical calculation or skip. See, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि हमें सिर्फ फील्ड दिखाना है. हमारे पास टोटल स्टूडेंट मास्टर में 6 फील्ड है, उनमें से हमें 3 फील्ड को ही शो करना है, नेम, सिटी एंड कॉन्टेक्ट नंबर. सो click on next button, then it will jump on 7th step, that is analysis. See, analysis which is used for to give a paid name for any field. So हमारे पास student name only है, so we can apply as a name of student, then student master में city और बाद में हम देख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज अ मोबाइल नंबर. सी, सो नाउ इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन इट विल शोज ओवरव्यू आवर लास्ट स्टेप्स, 8 स्टेप्स. नेम ऑफ क्वेरी, हम यहाँ पे क्वेरी स्टूडेंट मास्टर क्वेरी का नेम डिफाइन यहाँ कर सकते हैं. इफ वी क्लिक ऑन फाइंड फिनिश बटन, देन इट विल लुक लाइक, हमें जो क्वेरी है वो क्वेरी का रिजल्ट हमें डेटा शीट व्यू में भी देखने को मिलेगा, टेबल के फॉर्म में देखने को मिलेगा. यू कैन सी नाउ हमने 6 फील्ड में से 3 ही फील्ड सिलेक्ट किए हुए थे स्टूडेंट मास्टर में से, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, सिटी और मोबाइल नंबर हमें ये दिखाई देंगे यहाँ पे एज अ रिजल्ट. ओके, और सिटी फील्ड में हमने सॉर्ट किया हुआ था, आप देख सकते हैं बाय असेंडिंग ऑर्डर. हमारे पास एक क्वेरी डिफाइन हो गई है बाय, हमने क्वेरी डिफाइन की है बाय यूजिंग क्वेरी विजार्ड. डबल क्लिक करेंगे और हम उसका रिजल्ट भी यहाँ शो कर सकते हैं. ओके,